مہنگی بجلی کے خلاف 2 ستمبر کو شٹر ڈاؤن ہڑتال سٹی کلاتھ بورڈ فیصل آباد کی جانب سے حمایت کا اعلان جنرل سیکرٹری عباس حیدر شیخ نے تاجروں کو ہڑتال کامیاب بنانے کی کال دے دی۔ مہنگی بجلی کے خلاف آل پاکستان انجمن تاجران کی 2 ستمبر کو شٹر ڈاؤن ہڑتال سٹی کلاتھ بورڈ فیصل آباد نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ جنرل سیکرٹری عباس حیدر شیخ کہتے ہیں بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافے کے خلاف مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کو کامیاب بنائیں گے۔ انسانوں کے ساتھ یہاں پر کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیں۔ ان کو چاہیے اگر انہوں نے یہ واپس نہ لیے تو یہ 2 تاریخ کی جو ہڑتال اناؤنس کی گئی ہے تو انشاءاللہ یہاں پر تمام دوست تمام دکاندار اس طرح مکمل تیار ہیں کہ ہم انشاءاللہ 2 تاریخ کو ہڑتال کریں۔ تاجروں کا 2 ستمبر کو مکمل شٹر ڈاؤن اور گھنٹہ گھر میں احتجاج میں بھرپور شرکت کا فیصلہ۔ بولے بجلی کے بلوں میں اضافہ واپس نہ لیا گیا تو دمادم مست کلندر ہوگا۔ یہ بل زیادہ ہیں، کاروبار کم ہے۔ یہ تو ہڑتال کی ہم مکمل حمایت کریں گے اور یہ عوام اتنے غصے میں ہے وہ سول نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو پھر تو دم ہی ہوگا جی۔ یہ قرضہ لیا انہوں نے، وہ کھا گئے، وہ مر گئی قوم، غریب آدمی ختم ہو گیا جس کی تنخواہ 12-13 ہزار روپیہ ہے، وہ گھر کا کھانا کھائے گا کہ دم بل دے گا۔ تاجر کہتے ہیں مہنگائی کا طوفان روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم پرامن طریقے سے حکومت اور مقدر حلقوں کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ ریاست عوام سے سوتیلی ماں جیسا سلوک بند کرے۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں بجلی کے زائد بلوں کے خلاف تاجر برادری نے 2 ستمبر کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کا کال دے دی۔ بجلی کے بلوں کے خلاف ٹوبہ ٹیکسنگ کی تاجر برادری کا 2 ستمبر کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کا فیصلہ۔ احتجاج کی کال پر ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے اجلاس طلب کر لیا۔ ایکسین شیخ مدثر علی، ناصر پترانا اور صدر بار احتشام الحق کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم کا کہنا تھا کہ شٹر ڈاؤن ہڑتال میں جلاؤ گراؤ کی اجازت نہیں دیں گے۔ فیسکو ملازمین صارفین کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ فیسکو تنصیبات عوام کی اپنی ہیں، ان کا نقصان عوام کا نقصان ہے۔ آج ٹوبہ ٹیکسنگ میں ہم نے تاجر برادری کے ساتھ ایک میٹنگ کی جی، اس سلسلے میں کہ انہوں نے 2 ستمبر کو جو شٹر ڈاؤن اسٹرائک کی کال دی ہوئی ہے، تو اس سلسلے میں تاجر برادری کو اس چیز سے آگاہی دی گئی۔ یہ جو بجلی کے بلوں میں ہوش و اضافہ ہوا ہے اس کے بعد سے آپ نے جو ہڑتال کی کال دی ہے تو اس میں کسی قسم کی پرتشدد جو ہے وہ مظاہرہ وہ نہ کیا جائے۔ انجمن تاجران کے عہدیداران بھی اجلاس میں شریک۔ شرکا کا بجلی کے زائد بلوں پر اظہار تشویش۔ تاجر برادری نے ڈپٹی کمشنر کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکس کے حوالے سے جو ہم ہڑتال کر رہے ہیں اس کے لیے ہماری مرکزی قیادت نے ہمیں آل پنجاب انجمن تاجران کی طرف سے کال ہے، تو ہم 2 تاریخ کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے اور ہمارا احتجاج پرامن ہوگا اور کوئی کسی قسم کی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ تاجر برادری کا کہنا تھا کہ 2 دسمبر کو پرامن احتجاج کیا جائے گا۔ فیسکو حکام نے بلوں کی اقساط اور بلوں کی تاخیر کے حوالے سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیکسنگ۔ بجلی کے بل اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، سپریم انجمن تاجران ان ایکشن۔ 2 ستمبر کو پرامن احتجاج کی کال دے دی۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی وفد امین بٹ کی دفتر آمد۔ بجلی کے بل اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، سپریم انجمن تاجران ان ایکشن۔ 2 ستمبر کو پرامن احتجاج کی کال دے دی۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے وفد کی امین بٹ کے دفتر آمد، احتجاج میں شرکت کا اعلان کیا۔ چیئرمین سپریم انجمن تاجران امین بٹ کا کہنا تھا سیاست دانوں نے عوام کو IMF کا غلام بنا دیا، ہر خاص عوام مہنگائی کے طوفان سے دوچار ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ذرعی جنرل سیکرٹری بولے بجلی کے بلوں نے عوام کا بھرکس نکال دیا، حکمران عوام کی حالت ذات پر خاموش ہیں۔ فیصل آباد کے تمام تاجر، تمام صدور میرے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کر کے گھنٹہ گھر میں 8 بازاروں میں ہم کھڑے ہو کر یہ فیصلہ کیا تھا اور گورنمنٹ کو تنبیہ کی تھی کہ براہ مہربانی ہمارے تاجروں کا سوچیں، ہماری غریبوں کا سوچیں۔ دوسری جانب بڑھتی مہنگائی پر ڈاکٹرز بھی میدان میں آ گئے۔ پرائیویٹ ہاسپٹلز ایسوسی ایشن اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے عہدیداران کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس۔ بجلی اور واسا کے بلوں میں اضافے کی بھرپور مذمت، عہدیداران کا مطالبات کی عدم منظوری پر احتجاج کا دائرہ کار وسیع، عدالت جانے کا اندیہ۔ عہدیداران کا کہنا تھا بلوں میں اضافہ عام آدمی کے لیے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں۔ واسا کی جانب سے بلوں میں 25% اضافے نے شہریوں کو ادھموا کر دیا۔ مفت بجلی اور پانی ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جن کی آمدن لاکھوں میں ہے۔ حکومت کو ہر صورت میں یوٹیلیٹی بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز کو واپس لینا ہوگا۔ واسا وہ ادارہ ہے جس نے کوئی نئی سہولت نہیں دی مگر بل میں اضافہ کر دیا۔ PM میں جب سٹارٹ کرے گی تو احتجاج پھر میں نے جیسے عرض کیا کہ پورے پنجاب میں پھیلے گا، یہ صرف پرائیویٹ ہاسپٹلز تک نہیں رہے گا، تمام ڈاکٹر ایسوسیشن جو ہیں وہ 42 ہمارے ڈسٹرکٹس تک اس پھیل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ حکومت نے پہلے صحت کارڈ کی سہولت کو ختم کر کے غریب آدمی کے اخراجات میں اضافہ کیا۔ یوٹیلیٹی بلوں میں بے تحاشا اضافہ تمام سیکٹرز کو متاثر کر رہا ہے۔
जमात इस्लामी की महंगाई बिजली के बिलों के खिलाफ 2 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल। फैसलाबाद के तमाम बड़ों ने मुल्क गिर हड़ताल की हिमायत कर दी। महंगाई में इजाफा, कारोबार बंद, गरीब पर भारी भरकम बिलों का बोझ डाल दिया गया। फैसलाबाद की तमाम छोटी बड़ी ताजर तंजीमों और जिले क़यादत जमात इस्लामी की चौक घंटा घर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 सितंबर को सनती शहर को बंद करने का ऐलान कर दिया। जिले अमीर जमात इस्लामी महबूब जमान भट्ट बोले, 2 सितंबर को भरपूर एहतजाज किया जाएगा। इशराफिया सबसे ज्यादा मरात ले रही है, इनको बंद करना होगा। मरात याफ्ता तबके से मरात वापस ली जाएं। असलम भल्ली और अमीन भट्ट ने ताजरों की नुमाइंदगी की। कहा, ताजर सिर्फ दुकानें बंद नहीं करेंगे, एहतजाज और रैलियों में पेश होंगे। पिछले माह से हुकूमत ने जो बिजली के बिलों में वहशियाना और इंतहाई बेरहमाना इजाफा किया, ये आम शहरी से बर्दाश्त नहीं हो सका। एक आम आदमी के जिसके पास महज 2 पंखे हैं, चंद जो है वो 2 कमरे हैं, वो भी 10-15 हज़ार से कम बिल अब उसकी जो है वो रेंज में नहीं है और वो बेचारा अदा नहीं कर सकता। कारोबार नहीं चलता है तो मजदूर का चूल्हा जो है वो ठंडा हो जाता है और उसकी वजह से क्राइम रेट में भी इजाफा होता है। हम अपने शहर को खराब करना नहीं चाहते, निज़ाम को खराब नहीं करना चाहते, अपने रोजगार को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते कि 8 दिन में हमारे फैसलाबाद में क्या पूरे पाकिस्तान में कोई आवाम को और गरीबों को रिलीफ दें। लेकिन उसका गवर्नमेंट ने हमें ये इनाम दिया है कि जब 8 दिन पूरे हुए हैं तो इनाम ये मिला है कि पता चला है कि कल को बिजली मजीद बढ़ रही है। मजहबी रहनुमाओं ने भी 2 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल की हिमायत कर दी। चेयरमैन मरकजी उलमा कौंसिल पाकिस्तान अल्लामा जाहिद महमूद कासिमी का कहना था कि गरीब अवाम पर टैक्सेस का बोझ डालना सरासर ज्यादती है। आइंदा जुमा में तमाम मसाजिद में 2 सितंबर को हड़ताल के हवाले से उलमा अपना किरदार अदा करेंगे। 2 सितंबर को पूरे पाकिस्तान में मुल्क-गिर पहिया जाम हड़ताल, जिसकी कॉल जनाब सिराजुल हक साहब ने दी है, इसकी तायीद करता हूँ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ परसों आने वाले जुमे में हमारे उलमा और मशाइख पूरे फैसलाबाद शहर की मसाजिद में ऐलानात करेंगे और हम इस हड़ताल को पुरअमन बनाएंगे। रहनुमाओं के मुताबिक 2 सितंबर को अगले लाए अमल का ऐलान भी किया जाएगा। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फसी नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ अवाम, ताजिर और सनतकार यकसबार। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स ने भी बिजली के बिलों पर सर पकड़ लिए। मुतबादिल एनर्जी सोर्सेज भी इतने महंगे हैं कि काम चलाना मुश्किल होने लगा। भारी भरकम बिजली के बिल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर भी कहर बनकर टूट पड़े। बिल देखकर सनतकार भी चकरा गए। एसएमएस के मुताबिक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर इंडस्ट्री मालकान भी आग बगोला। एलएसएम मालकान बोले, सनत चलेगी तो मुल्क तरक्की करेगा। माशी मुश्किल हालात में भी जैसे तैसे करके कारोबार चला रहे थे, मगर अब लगता है हमें जानबूझकर दिवालिया किया जा रहा है। साबिक सदर चैम्बर सैयद ज़िया अलमदार कहते हैं, ऐसे तो कारोबार चलने वाला नहीं। पेट्रोल, बिजली, खाम माल सब कुछ महंगा। यही सूरत हाल रही तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, जिससे बेरोजगारी का नया तूफान आएगा। गैस के ऊपर भी ये एक गलत फैसला करने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इन वजूहात की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट गिरेगी, हमारी इकोनॉमी का और बेड़ा गर्क होगा, और वो लोग जो चाहते हैं कि हमारे मुल्क जो है वो आगे ना बढ़े, वो आज बहुत खुश है। दूसरी जानब लारी अड्डा उस्मान कबाड़ मार्केट के ताजर बिजली बिलों में इजाफे पर फट पड़े। बोले, महंगाई की वजह से काम पहले ही ठप हो चुका, इस पर इतने ज्यादा बिल कहां से अदा करें। अब ये 3 माह से बिल इतना ज्यादा भेज रहे हैं। अभी 32,000 बिल आया है, पिछली बार 28,000 बिल आया। ये इतना ज्यादा बिल भेज रहे हैं। इस बिल में इतने यूनिट नहीं चलते जितना इन्होंने टैक्स डाल दिया है। हमें टैक्स माफ करना चाहिए, इन लोगों को चाहिए। हमें कारोबारी अफराद ने हुकूमत से बिजली के बिलों में रिलीफ फराहमी के लिए इक़दामात का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बलाल डोगर के साथ असलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। महंगाई का तूफान चिनियोट का मजदूर भी मैदान में आ गए। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। घर में एसी है न कूलर, काम मिलता नहीं। 20-20 हज़ार के बिल कहां से अदा करें। बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ एहतजाज जारी। चिनियोट के मजदूर भी सड़कों पर आ गए। गढ़े चौक चिनियोट में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। सुबह काम की तलाश में आते हैं और बेरोजगारी की वजह से शाम को खाली हाथ घर लौट जाते हैं। रोटी पूरी नहीं कर पा रहे, महंगाई का मजीद बोझ नहीं उठा सकते। मजदूरों की दुहाई। 16,885 रुपए बिल है मेरा। ना घर में मेरे फ्रिज है, ना कोई चीज है, ना ऐसा है कि मेरे घर में सिर्फ एक बल्ब चलता है।
2 पंखे हैं सिर्फ चलते जो लिहाजा ये बिल मैं कहाँ से इतना पे करूँ, ना हमारी मजदूरी होती है ना कुछ होता, हम क्या करें। हम अब घरों के सामान उठा के बेचना शुरू कर दिया हुआ है। मजदूर कहते हैं घर में एसी है ना कूलर, काम मिलता नहीं, 20-20 हजार के बिल कहाँ से अदा करें। 11,450 रुपए हमारे घर का बिल आया है। हम रोजाना इधर आते हैं, खड़े होके चले जाते हैं, 200-300 रुपए का हमारा पेट्रोल जलता है। रोजाना डेली आ रहे हैं, हफ्ते में 1 दिहाड़ी या 2 दिहाड़ी लगती है। हम घर का बिल जो है वो किस तरह अदा किया जाए। हमारी हुकूमत से अपील है कि हम पे कुछ रहम किया जाए, ये जो बिजली का जुर्माना टैक्स हैं ये खत्म किए जाए। एक हफ्ते में 3 रोज मजदूरी मिलती है, महंगाई में गुजारा कैसे करें, हुकूमत से रहम करने की अपील करती। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ उमैर हैदर, सिटी 41 चिन्योट। महंगाई के बायस बेरोजगारी का तूफान बरपा, फैक्ट्रियों ने मुलाजमीन को निकालना शुरू कर दिया। इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी में फैक्ट्री ने 30 वर्कर्स को बगैर नोटिस दिए मुलाजमत से फारिग कर दिया। कम से कम उजरत के ऐलान की मंजूरी न होने पर मजदूर सरापा एहतजाज। हुकूमत से महंगी बिजली, पेट्रोल और महंगाई के तूफान ने मजदूर को लावारिस छोड़ देने का शिकवा। पंजाब हुकूमत का मजदूर की कम से कम उजरत बढ़ाने का ऐलान, इजाफे का नोटिफिकेशन जारी ना किया गया तो 1 सितंबर को लाहौर में धरना दिया जाएगा। महंगाई, बिजली, पेट्रोल, सीवरेज के बिलों में इजाफे से मजदूर परेशान। मजदूरों ने कम से कम उजरत को जल्द अज जल्द नाफिजुल अमल करने का मुतालबा कर दिया। लेबर लीडर बाबा लतीफ बोले, 2 साल से महंगाई ने मजदूर का कचूमर निकाल दिया। महंगाई आसमान पर पहुँच गई। मजदूर 25 से 27 हजार रुपए माहाना में कैसे गुजारा करे। मई के अंदर कम अज कम उजरत 32,000 रुपये का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक उसका गज़ट नोटिफिकेशन नहीं जारी किया। हम वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने कम अज़ कम इसकी समरी मंजूर करके कबीना के अंदर रखने का वादा किया है। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि 1 जुलाई को ये कानून लागू होना है। बाबा लतीफ कहते हैं, फैसलाबाद में लाखों मजदूर काम करते हैं। मुख्तलिफ मिलों ने उजरत में इजाफा किया है, लेकिन अक्सरियत मिल, फैक्ट्रियां और लूम्स अब भी इजाफा नहीं कर रही। हमारे पास अब आखिरी ऑप्शन सिर्फ धरना रह गया, जो कि 1 सितंबर को दिया जाएगा। जब हम लेबर डिपार्टमेंट में आते हैं तो हमें यही कहा जाता है कि गज़ट नोटिफिकेशन आ जाए फिर अमल दरामद कराएंगे। पहले 25,000 तनख्वाह की थी, उस पर अमल दरामद करने के लिए अभी तक नहीं हुआ। अब 32,000 का नोटिफिकेशन कब आएगा? अगर नोटिफिकेशन जारी ना हुआ तो 1 सितंबर को शिमला पहाड़ी चौक से 8 क्लब वज़ीर आला हाउस तक हम एहतजाजी रैली करनेंगे और वहाँ पे धरना देंगे। जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा हमारा ये धरना वहाँ पे जारी रहेगा। महंगाई और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ लेबर कौमी मूवमेंट ने गुलाम मोहम्मदाबाद में एहतजाजी रैली भी निकाली। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फसीह नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तियाब न है चीनी। अदम दस्तियाबी के बायस शहरी परेशान, खाली हाथ लौटने लगे। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर से चीनी आटा गायब हो गया। स्टोर्स का शेख रोनोश का कम कोटा मिलने पर मसाइल मजीद बढ़ने लगे। शहरी मार्केट से महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। खवातीन कहती हैं, सुबह से यूटिलिटी स्टोर्स पर इंतजार में बैठे हैं। रोजाना शाम को खाली हाथ लौटा दिया जाता है। महंगाई की वजह से 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है। कल आटा भी आया था, चीनी भी आई थी, कल भी नहीं मिला। सुबह से ना 8 बजे से 4 बजे तक बैठ के चले गए, कह रहे आटा नहीं आया। आज फिर सुबह के आके बैठे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं मिल रहा। परसों भी आया था, परसों भी नहीं मिला। घर बच्चों को क्या खिलाएं हम? हमें नहीं मिला ना, हमें कल चीनी मिली ना आटा। हम फिर आज आ गए। 200 हमने रिक्शे का किराया लगा के, अब 200 जब जाएंगे देंगे। अब देखो आटा भी मिलता है कि नहीं। और भूख, अभी भी इतनी भूख लग रही है, बच्चों को भी ऐसे छोड़ के आए हैं। आटा न मिलने से मुश्किलात में इजाफा हो गया है। जब भी आते हैं इंतजामिया कहती है सिर्फ बेनजीर स्कीम वालों को ही आटा दिया जाएगा। अगर कभी 1500-2000 की खरीदारी करें तो ही आटा मिलता है। कराची की 1000 बोरियां आई। परसों चीनी का भी स्टॉक आया, मगर हमें नहीं दिया जा रहा। नहीं मिलिया सानू, साड़ी वारी जो आई उदो नहीं मिलिया। हुण अज फिर आए, सुबह दे बैठे, हले तक मिलिया कोई नहीं। चीनी भी मिलती कोई नहीं हैगी। चीनी कदी कहंदे आंदी, कदी कहंदे नहीं आंदी। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम रिलीफ को तरस गए। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा और चीनी की फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। यूरिया खाद मजीद महंगी, बढ़ती कीमतों पर काबू ना पाया जा सका। फैसलाबाद में यूरिया खाद मजीद 500 रुपये महंगी 4,500 रुपये में बेची जाने लगी। किसान खाद की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ सरापा एहतजाज, खाद की कीमत को कंट्रोल करने का मुतालबा। बोले, कुछ अरसे से हफ्तावार कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसके बावजूद सरकारी निर्खों पर यूरिया खाद नहीं मिल रही। जिला इंतजामिया की नाअहली का खमियाजा काश्तकारों को भुगतना पड़ता है। तेल पेट्रोल ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਧ ਰਹੀਆਂ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਦ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਜ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ 2 ਵਾਰਾਂ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1000 ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਈਆ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਅਲਮੀਆ ਇਹ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਕੀਮਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ यूरिया की कीमत फैसलाबाद डिवीजन में एप्टोमा पावर प्लांट्स के सनती सार्फिन महकमा सोई गैस के नादहिंदा। गैस से बिजली बनाने वाले कारखाने अरबों रुपए की गैस मुफ्त में इस्तेमाल कर गए। फैसलाबाद डिवीजन में कैप्टिव पावर प्लांट्स के सनती सार्फिन महकमा सुई गैस के नादहिंदा। फैक्ट्री मालिकान बजरिया गैस बिजली बनाकर करोड़ों की बचत करते रहे मगर वाजिबात अदा न किए। महकमा सुई गैस ने नादहिंदगान को कनेक्शन मुनक़ता करने की नोटिस जारी कर दिए। महकमा सुई गैस की रिपोर्ट के मुताबिक डिवीजन भर में कैप्टिव पावर सुई नॉर्दर्न के 1 अरब रुपए से ज्यादा के नादहिंदा हैं। बड़े सनती यूनिट सुई नॉर्दर्न से गैस लेकर खुद बिजली बनाते रहे। मुतादिद सनती यूनिट्स ने बिजली के करोड़ों के बिल बचाने के लिए गैस पर बिजली बनाई। सनती यूनिट्स ने 7 साल से गैस के बिल अदा नहीं किए। SNGPL हुक्काम के मुताबिक नादहिंदा कैप्टिव पावर्स के कनेक्शन मुनक़ता करके रिकवरी के अमल को यकीनी बनाया जाएगा। फेस्को का इंडस्ट्रियल सेक्टर को AMI सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला। फेस्को का इंडस्ट्रियल सेक्टर को AMI सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला। इंडस्ट्रियल सारिफीन की लिस्टें तैयार। 1000 से ज्यादा इंडस्ट्रियल सारिफीन के AMI मीटर्स लगाए जाएंगे। इस हवाले से फेस्को हुक्काम का कहना है इंडस्ट्रियल कनेक्शंस को जदीद सिस्टम पर मुंतकिल किया जा रहा है। तमाम इंडस्ट्रियल कनेक्शन को AMI मीटर्स लगाए जा रहे हैं ताकि बड़े कनेक्शन की ऑनलाइन रीडिंग की जा सके। बिजली चोरी का भी ऑनलाइन तयन किया जा सकेगा। दूसरी जानिब नेट मीटरिंग का बढ़ता रुझान। फेस्को में ग्रीन मीटर्स का बहरान। फेस्को अमले की सुस्ती नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए मसला पैदा करने लगी। नेट मीटरिंग की सैकड़ों दरख्वास्तों पर ग्रीन मीटर्स न लग सके। सार्फिन फेस्को पर बरस पड़े। बोले ग्रीन मीटर्स के लिए सब डिवीजन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर है। फेस्को अमला टाल मटोल से काम ले रहा है। सार्फिन कहते हैं ग्रीन मीटर्स जल्द फराहम किए जाएं ताकि महंगी बिजली से छुटकारा मिल सके। महकमा एक्साइज की टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। केनाल रोड सरगोदा रोड समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर नाकाबंदी। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ मुतहर्रिक। केनाल रोड सरगोदा रोड समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर नाकाबंदी। गुज़िश्ता सालों के टोकन टैक्स जमा न करवाने वालों से जुर्माने के साथ टैक्स वसूल किया गया। जुर्मानों की अदम अदायगी पर मुतअद्दिद गाड़ियां बंद कर दी गईं। बगैर रजिस्ट्रेशन शाहराहों पर आने वाली गाड़ी मालिकान के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। ETO एक्साइज एंड टैक्सेशन अल्ताफ चीमा ने बताया कि डिफॉल्टर से मौका पर रिकवरी या फिर गाड़ियां बंद की जा रही हैं। रमा साल के नादहिंदगान को वार्निंग दी जा रही है। बगैर रजिस्टर्ड गाड़ियां भी बंद की जा रही हैं। जो डिफॉल्टर गाड़ियां हैं या अप्लाइड फॉर गाड़ियां हैं उनको हम पकड़ते हैं, थानों में लॉकअप करते हैं, ऑफिस में भेजते हैं। तो मेरी फैसलाबाद के शहरियों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने अपने वाजबात इन टाइम जमा कराएं और अच्छा शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि बाद में काफ़ी परेशानी होती है। ये देखो गाड़ियों को लॉक लगाया हुआ है और फैमिली होती है, हमें भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए ऑन रोड होने से पहले कंफर्म कर लें कि आपकी गाड़ी का टोकन पे है कि नहीं पे। एक्साइज हुक्काम ने परेशानी से बचने के लिए शहरियों से बर वक्त गाड़ी का टोकन टैक्स जमा कराने की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। 3 हफ्तों की बंदिश के बाद बिलाखिर फैसलाबाद के राज्य रिकॉर्ड सेंटर खोल दिए गए मगर ROD ब्रांच और रजिस्ट्री ब्रांच के ताले अब भी न खोले जा सके। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में इंसुलिन नायाब। शुगर के मरीज खवार गरीब मेडिकल स्टोर से 2500 रुपए में इंसुलिन खरीदने पर मजबूर हो गए। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल 1 में इंसुलिन नायाब। शुगर के मरीज ख्वार गरीब मेडिकल स्टोर से 2500 रुपए में इंसुलिन खरीदने पर मजबूर हो गए। हुकूमती हदायत पर अलाइड अस्पताल 1 में इंसुलिन बैंक का क़याम अमल में लाया गया था। मरीज कहते हैं रोजाना चक्कर लगा रहे हैं मगर इंसुलिन नहीं मिल रही। गरीब आदमी मेडिकल स्टोर से इंसुलिन खरीदने की सकत नहीं रखता। हुकूमत सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन की फराहमी यकीनी बनाए। पीपल कॉलोनी 2 नंबर तो है, पर्ची बनवाने का फायदा कोई नहीं। वो कहते इंसुलिन नहीं है। इतना जलीलो ख्वार होना पड़ रहा है। ठीक है, आपने लाइनों में लगना है, फिर आपने इंसुलिन लेनी है। ठीक है जी, तो या चलें ठीक है, वो भी ज़ाहिर एक कायदा कानून है, जो असूल होते हैं उन्हें फॉलो करना ही पड़ता है कि आपने लाइन में लग के लेनी है जिस तरह भी है, लेकिन मिले तो सही ना, वो मिल ही नहीं रही। MS अलाइड अस्पताल डॉक्टर फहीम यूसुफ के मुताबिक अस्पताल में 37,000 शुगर के मरीज रजिस्टर्ड हैं जिन्हें इंसुलिन फराहम की जा रही है। ताहम 40,000 मजीद इंसुलिन आ रही है जो 2 से 3 रोज में मरीजों को मिलनी शुरू हो जाएगी। जी, शोबा बिरूनी मरीज़ा में हमारे पास अलाइड अस्पताल में 37,000 शुगर के पेशेंट्स रजिस्टर्ड हैं जिनको इंसुलिन दी जा रही थी। सप्लाई ऑर्डर्स जारी किया जा चुका है। 40,000 इंसुलिन की वाइल्स 2 से 3 दिन में अलाइड अस्पताल के
शोबा बैरूनी मरीज़ा में रजिस्टर्ड मरीजों के लिए इंसुलिन दस्तयाब होगी। शुगर के मरीजों को इंसुलिन ना मिलने के बायस इनका मर्ज मजीद बिगड़ रहा है। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद।